everyone. Today we are going to wrap up the things we have discussed about divorce in the last class, and then we are going to proceed for the next next lectures of the divorce. We are going to complete the grounds of the divorce, the criteria of the divorce, and then we are going to study further regarding this. Okay. So, coming to the part of the divorce, as I have already explained you in the last class, like what are the proper criterias of the divorce, what is the ground of the divorce, and how a husband or wife can apply for the divorce. Those things we have already discussed. Okay. So, when we're talking about the first part of the divorce, it speaks about the spouse. The spouse means it might be the husband or it might be the wife. Okay. तो इसे को थोड़ा हिंदी में समझते हैं. आप एक स्पाउस बोले तो ना, आप पति भी समझ सकते हैं, पत्नी भी समझ सकते हैं. इट माइट बी द हस्बैंड और माइट बी द वाइफ. ओके. सो any of the party can ask for the divorce on the certain grounds explained under clause 1 of the section 13 of Hindu Marriage Act. Okay. हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 का क्लॉज 1 के अंडर जितने सारे ग्राउंड्स एक्सप्लेन किया गया है, अगर उसी ग्राउंड के बेसिस पे किसी को डाइवोर्स चाहिए, देन द पर्सन कैन फाइल फॉर द डिवोर्स. So it is not specifically either for the husband or for the wife. ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली हस्बैंड के लिए है या वाइफ के लिए है. इट इज फॉर द बोथ, right? It might be for the husband or it might be for the wife. It is applicable to each of the parties to the marriage. Like पति हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है. शादी का जो दोनों पार्टी होते हैं ना, उनके ऊपर ये लागू होता है ना? Clear? Then coming to the next part, we have discussed the grounds of the divorce. Like what are the grounds of the divorce according to the first clause we have discussed. Okay, sorry for the interruption. There was some glitches to reset. Yeah, and when we're talking about the second part, like the first part we have discussed, and the second part is about the explanation. The explanation speaks about the mental disorder, the criteria of the mental disorder, the psychopathic disorder. These things has been explained under the second part of section 13. Okay. And coming to the clause 1A, it was about the solemnization of the marriage by the decree of the divorce on the ground of the judicial separation or restitution of the conjugal rights. Under section 1A, it speaks about the divorce on the basis of the judicial separation or restitution of the conjugal rights. Okay. And then the clause 2 of the Hindu Marriage Act, section 13, it speaks about on the ground of the when the husband or wife has been already married before. Okay. And the last part, it specifically indicates to the wife when the wife can file for the decree of the divorce. Okay. So the clause 2 of section 13 specifically indicates to the wife that what are the grounds on which a wife can sue or a wife can ask for the decree of the divorce. Okay. These things we have already discussed. So let's have a small recap upon the things we have discussed in the last class, and then we are going to proceed further. Okay. So briefly बोले तो पहले बात मैंने जो आपको लोगों को समझाया था, शॉर्ट में इसको समझा रही हूँ. सेक्शन 13 का जो क्लॉज 1 आपका होता है ना, क्लॉज 1 पे आपका जो कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई किया गया है. सो व्हाट आर दोस कंडीशंस? क्लॉज 1 का फर्स्ट कंडीशन ये है कि पति या पत्नी अपने खुद के पति या पत्नी को छोड़ के अगर दूसरे किसी पराया मर्द या पराया औरत के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, जिसी को बोलते हैं यौन संपर्क, अगर करता है, दैट मीन्स इफ आई एम मैरिड देन आई हैव ऑल माई राइट्स ऑन माई हस्बैंड और माई वाइफ. बट अपने
या पत्नी को छोड़ के दूसरे कोई औरत या दूसरा कोई मर्द के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना इज द वायोलेशन ऑफ द राइट ऑफ द स्पाउस एंड दैट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स। पहला चीज। दूसरा चीज हमने क्या समझे थे? व्हेन द पर्सन treats the partner with cruelty, है ना? And under the ground of the cruelty we have discussed, that is of the two types. This is of the so under the cruelty we have discussed, like it might be the physical cruelty or it might be the mental cruelty, है ना? So cruelty is of two types, physical cruelty and mental cruelty. Physical cruelty we have already discussed, when you are just you are just being cruel to someone, like you are harming someone, you are harming someone's physical things, like that is the thing of the cruelty we have discussed. And when we are talking about the mental cruelty, then we have discussed like when there is the thing of the mental torture, like you are forcing someone to do some kind of the act, not supporting someone mentally, just like the husband left her wife after the marriage. So these things comes under the mental cruelty. So we have discussed under this that when it comes under the physical cruelty or mental cruelty, then the party who each the suffering party due to cruelty, the party can ask for the decree of the divorce on the ground of the cruelty, है ना? Got it? The third point we have discussed, has deserted the petitioner for continuous period not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. मतलब जिस डेट पे आपका ये पिटिशन प्रेजेंट हो रहा है उसी का एग्जैक्ट 2 साल पहले को चले जाओ। बिफोर द 2 years, 2 साल पहले से ही पति पत्नी के बीच में देयर इज नो प्रॉपर रिलेशनशिप, पति अपने पति को छोड़ के रह रहा है या पत्नी अपने पति को छोड़ के रह रहा है फ्रॉम द लास्ट 2 years ऑन द डेट, जिस डेट में आपका डिवोर्स का पिटिशन फाइल हुआ ना उसी का एग्जैक्ट 2 साल पहले से ही पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। सो दिस इज द ग्राउंड, दिस कैन बी द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। ओके, तो ये एक चीज का है। The next point we have understood that has ceased to be Hindu by conversion to the another religion. तो हमने क्या समझे थे? Like when the person has converted to the another religion, like the person is actually a Hindu, but the person has converted to the religion of the Muslim. Okay. So it is not always possible on the part of a partner to always manage from her side. Just like if I am a Hindu, so I am not supposed or I am not bound to adjust with a person, with my husband who is from another religion. For example, my husband was from very beginning he was a Hindu, but after that he converted to Muslim and he is following the rules and regulations of a Muslim traditions, Muslim religion, Muslim culture, which is very intolerant to me. And you know, according to Indian law, if you have studied the constitution, article 25 speaks about the freedom of the what does it speaks about? Freedom of the religion. Yes, freedom of the religion. Every person has the freedom to follow the religion what he or she supposed to or what he or she wants to follow. Okay, so if my husband is following the religion of Muslim, then I am not the one who is supposed to support him or who is bound to stay with him even with this changing situation of the religion. No, I am not bound to stay. Okay, I have all my right to file a divorce on this ground that I am unable to adjust anymore with this person because this person has changed his religion. है ना? Got it? Clear? Then next point, has been incurably of the unsound mind, that I have already explained you. So when a person is unsound mind and incurable as per the nature,
उसी का जो दिमागी हालत है ना, उसी को क्योर नहीं किया जा सकता है। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग विच कैन नॉट बी क्योरेबल, किसी को चाहते हुए भी हम उसी को सही नहीं कर सकते हैं। देन upon that ground a wife or a husband can file for the divorce। वो बोल सकता है कि नहीं, अगर मेरा पति या पत्नी दिमागी हालात पे सही नहीं है और वो इनक्योरेबल है, उसी को शादी का मतलब पता ही नहीं है, उसी को पता ही नहीं है कि शादी क्या बोलते हैं, मेरा एक बीवी है, मेरा घर परिवार है, उसी को उस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, तो उसी के साथ रिश्ता मैं कैसे निभाऊंगी, हाउ डू आई। So that can be the ground for the divorce. Not only the ground, that can be a very strong ground for the divorce, है ना। ये गया आपका पहला जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया। उसी के बाद आपका जो आता है एक्सप्लेनेशन फेज। ओके, तो एक्सप्लेनेशन फेज पे मैंने एक्सप्लेनेशन फेज पे मैंने आप लोगों को समझाया था, यहाँ पे जो मेंटल डिसऑर्डर की बातें होती है ना, सो व्हाट डज एग्जैक्टली दिस मेंटल डिसऑर्डर मीन्स टू, इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज ये डील करता है, तो ये चीज भी मैंने आप लोगों को समझाया था। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर, सो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था द मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में मैंने क्या बोला, जहां पे आपका दिमागी हालत सही नहीं हो। दूसरा क्या बोला, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, जहां पे आप बड़े तो हो गए हो बट आपका दिमागी हालत जो है ना, वो बच्चा जैसा है। योर माइंड इज नॉट, योर माइंड इज नॉट मैच्योर एज पर योर एज। आपका दिमाग का जो ग्रोथ है ना, वो 100% नहीं है। दैट इज अप टू ए फेज, लाइक आपको आधा चीज समझ में आता है, आधा चीज समझ में नहीं आता है। लाइक आप पागल नहीं हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, बट आपको अच्छा बुरा मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं है। यू आर स्टिल ग्रोन अप बट योर माइंड इज स्टिल एट ए फेज ऑफ ए किड। सो दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। साइकोपैथिक डिसऑर्डर मैंने क्या बताया था, साइकोपैथिक डिसऑर्डर में देयर आर द इमोशनल फेजेस दैट कम्स अपन, जस्ट लाइक कि एंजाइटी आना, गुस्सा आना, सैड हो जाना, सुइसाइडल थॉट्स आना, दीज आर कॉल्ड द साइकोपैथिक सिम्टम्स, जहां पे आपको एक साइकोपैथ बोला जाता है। आप अपने इमोशंस को ना अपने कंट्रोल पे नहीं रख सकते हो। जस्ट लाइक if I am aggressive, that means in the flow of aggression, I can do anything, है ना। if I am talking about the anger issues, if I am angry upon you, then I can step any to anything, I can do anything when I am angry on you, right? So this is called the psychopathic disorder, जहां पे आप साइकोपैथ बन जाते हो, आप अपना दिमाग को अपने कंट्रोल पे नहीं रख पाते हो, है ना। This is called the psychopathic disorder. Then the next point we have understood that about the seriously, yes. Then disability of the mind. Disability of the mind means when your mind is unable to analyze any certain things. Like आपका दिमाग कोई भी चीज को ना प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाती है। जस्ट लाइक कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को आपका दिमाग जो है ना, वो सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज सीजोफेनिया। सीजोफेनिया एक ऐसा सिम्टम है ना, जैसे कि सीजोफेनिया पे क्या होता है ना, मैंने जैसे कल आप लोगों को समझाया था, यू गो टू योर इमेजिनरी वर्ल्ड। आप रियलिटी का दुनिया और इमेजिनरी दुनिया में फर्क ही नहीं जान पाते हो। तो आपको क्या होता है ना, आपका जो इमेजिनरी वर्ल्ड होता है वो आपको अपना दुनिया लगना लग जाता है, राइट। सो यू स्टे एट योर इमेजिनरी वर्ल्ड, you always be confused upon your real and the imaginary things. So that is a kind of the disorder which makes you imbalanced and which makes your mental state as imbalanced, है ना। So that is called the schizophrenia. Schizophrenia means when you imagine things, you see things which is not actually and really existing. Got it? So
That was about the schizophrenia we have discussed. So in all these conditions, when a person is at this kind of mental state, like in this condition, this is always not possible for a party. It might be the husband or it might be the wife. If any of the partner is suffering from this mental disease, so it is not always possible for a person to compromise always, right? Okay, fine. This person is my husband. I have to sacrifice everything. ये पहले जमाने पे होता था जी. बट अभी का सिचुएशन ऐसा है ना कि अगर मेरे को किसी चीज से तकलीफ हो रहा है ना, तो आई हैव टू ऑब्जेक्ट फॉर दैट. शुड आई कॉम्प्रोमाइज? मैं अपना कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? अगर मेरे को पता है कि मैं इस चीज से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, देन नहीं कर पाऊंगी. राइट? आई हैव ऑल माई राइट्स टू लिव माई लाइफ. जिंदगी मेरे को एक ही मिली है, तो मैं तो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके अगर मतलब अपने पति या पत्नी के साथ सारी जिंदगी बिताने का डिसीजन लेता हूँ, तो वो बात अलग है कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती, वो बात अलग है. बट जेन्युइनली अगर लॉ की बात करें तो मेरा ये राइट है. लॉ मेरे को ये राइट देता है कि आपको जबरदस्ती अपने पार्टनर के साथ रहने का कोई जरूरत नहीं है. आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हैं, दैट टू विथ योर विश. है ना? क्लियर? गुड. नेक्स्ट. ये गया आपका. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका? अंडर क्लॉज भी वी हैव डिस्कस्ड suffering from a venereal disease in a communicable form. This is a most important point we have discussed. Venereal disease on a communicable form means like any kind of the disease, just like AIDS, okay, sexually transmitted diseases. So what happens in these diseases, like the through the physical relations or any kind of the relation you are doing with someone. तो वेनेरल डिजीज पे क्या होता है ना, आप जब अपने ना फिजिकल रिलेशन पे एंटर करते हो, देन ये वेनेरल डिजीज वर्क्स लाइक द हेल. वो आपके अंदर आपके पार्टनर के थ्रू आपके अंदर एंट्री करता है, जो कि आपके लिए जानलेवा हो सकता है. सो अगर आपका पार्टनर को कोई ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वेनेरल डिजीज है, एड्स हो गया, एसटीडी हो गया, किसी भी तरह का डिजीज मान लो, एंड आपको पता है कि वो क्योरेबल नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता, तो आपका पार्टनर आपको फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो आर यू बाउंड टू स्टे विथ योर पार्टनर? द आंसर इज नो. आपको पूरा हक है अपने अपने पार्टनर को छोड़ के जाने का, बिकॉज दैट इज योर चॉइस. Your partner is suffering from the venereal disease which can be transmitted to you. So you have all right to secure your own life. So you have the right to file for a divorce on this ground. है ना? Next point. Has renounced the world by entering into the religious order. ये तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, जैसे मैंने समझाया था कि अगर पति या पत्नी किसी ने संन्यास ले लिया, मान लो मेरे को मन नहीं किया दुनिया पे रहने का, मेरे को मन किया, अरे यार मैं संन्यास ले लेता हूँ, छोड़ो, मेरे को नहीं रहना है दुनिया पे, राइट? तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपना जो भी है, आई डिसाइडेड, एंड व्हाट डू आई डू? आई रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू द रिलीजियस ऑर्डर. मैं दुनिया से संन्यास ले लिया, मैं संसार से संन्यास ले लिया, मैं बाबा बन गया, मतलब मैं सन्यासी बन गया, दीक्षा ले लिया. आप जैन धर्म बोलिए, बुद्धिज्म बोलिए, किसी भी रिलीजन का मैंने दीक्षा ले ली, है ना? सो व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू ए रिलीजियस ऑर्डर, आई एम कटिंग द बॉन्ड विथ माय फैमिली, विथ द सोसाइटी, विथ एवरीथिंग. है ना? गॉट इट? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. एंड द नेक्स्ट थिंग, has not been heard of being alive for a period of 7 years or more. Okay? If I am a person, I am living in the society, then obviously ये बात सही होता है कि मेरे को ना लोग जानेंगे, लोग देखेंगे मेरे को, अरे यार ये जिंदा है, ये आना जाना करता है, खाना पीना करता है, हमारे साथ घूमता है, हमारे पास बैठता है, हमारे साथ बात करता है ना? बट इफ द सिचुएशन इज कि मैं दुनिया से गायब हो गई हूँ, मेरा कोई आता पता ही नहीं है, मैं कहाँ पे हूँ किसी को नहीं पता, यू डोंट नो वेयर आई एम,
when people are searching for me, उनको भी मेरा कोई आता पता मिल नहीं रहा, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा कोई कुछ खबर तक भी नहीं है. So if the condition is like this, then उस कंडीशन पे क्या होता है, 7 साल तक ना वेट किया जाएगा, 7 years, कि शायद मैं वापस आ जाऊं. अगर 7 साल तक ये जो दुनिया है ना, घूम घूम के गोल गोल है, कहीं ना कहीं घूम के आता है, अगर मैं इस कंट्री छोड़ के कहीं बाहर भी चला गया ना, तो कहीं ना कहीं मेरा अता पता मिल ही जाएगा. बिकॉज इफ आई एम मतलब मैं गायब हो जाता हूँ, तो मेरे लिए सर्च वारंट जारी किया जाएगा कि मैं कहाँ हूँ करके. अगर मैं इंडिया पे हूँ, इंडिया के बाहर हूँ, कहाँ पे भी हूँ, पर मान लो ऑल ओवर इंडिया पे सर्च वारंट जारी करवा दिया गया, बट मेरा कोई भी पता नहीं मिला, है ना. 7 साल चला गया, बट 7 साल के बाद मेरा कोई भी खबर नहीं मिल रहा है. उसी के बाद क्या होता है ना, उसी के बाद आई डिक्लेयर टू बी डेड. बिकॉज अगर 7 साल तक मेरा कोई पता नहीं मिलता है, तो मेरे को डेड डिक्लेयर करवा दिया जाएगा, है ना. क्लियर. सो दिस कैन बी द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स, कि अगर मतलब एंड दिस कैन कम्स अंडर द एक्स पार्टी डिग्री, बिकॉज यहाँ पे पति जो होता है ना, उसी का कोई खबर ही नहीं है. तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि पति यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आके आर्ग्यू करने को, अरे यार मेरा पत्नी है, मैं इसी को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मतलब मेरे को जो भी है ऐसा ऐसा. पति यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है ना. सो व्हेन द हस्बैंड इज नॉट अवेलेबल and the husband has renounced the world, or the husband has been disappeared from more than 7 years, then this can be the ground of the ex parte decree of the divorce. and यहाँ पे पत्नी को जो है या पति को जो है, अगर पत्नी चली जाती है तो पति को जो है डिवोर्स का एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मिलता है, एंड यहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री भी इशू हो सकता है. क्लियर. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट we're talking about that so next point we're talking about that we're talking yeah, the clause 1, clause b, then comes to the clause 1a. clause 1a पे हमने दो कंडीशन डिस्कस किए थे, जैसे मैंने आपको बताया था. The two conditions are about the judicial separation and restitution of the conjugal rights. Okay, so when it is about the judicial separation, we have understood that if the court has granted the judicial separation, okay, and judicial separation grant करने का 1 साल आगे तक, up to the 1 year of the judicial separation, the husband and wife are staying separately from each other. They are not staying together with each other. Okay. And the second point was about the restitution of the conjugal rights. Okay. When the court has granted the restitution of the conjugal rights to the another partner, ना? So क्या होता है कि like the husband or wife, any of the partner, he or she has asked for the restitution of the conjugal rights against the another partner. तो मैंने बोला कि अरे यार मेरा पार्टनर तो मेरे साथ रह ही नहीं रहा है, so I want to file a restitution of the conjugal rights, है ना. तो कोर्ट ने क्या किया, मेरा पार्टनर को इशू किया restitution of the conjugal rights, but even after granting of the restitution of the conjugal rights by the court, the partner is still not coming and staying with the wife. तो यहाँ पे दो चीज बोला गया, ये this might be the restitution of the conjugal rights, or this might be the judicial separation. If this is the condition, है ना, अगर जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट, ये दोनों कंडीशन पे ये देखा जाता है कि पति या पत्नी कोई भी हो, whoever is the spouse, even after the order of the court, अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती है, then this can be the ground of the divorce, and this is the major ground of the divorce itself. This can be the ground of the divorce for any of the spouse. Okay, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था. तो नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं.
A wife may also present a petition for dissolution of her marriage by the decree of the divorce. यहाँ पे जो आपका क्लॉज 2 होता है ना, इट स्पेसिफिकली स्पीक्स अबाउट द वाइफ, है ना. सो इट एग्जैक्टली स्पीक्स व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द वाइफ कैन ask for the decree of the divorce. यहाँ पे पत्नी जो होती है ना, वो कौन सा ग्राउंड पे डिवोर्स का डिक्री के लिए पिटिशन फाइल कर सकती है. दैट इज ए क्वेश्चन ओवर हियर. सो व्हाट डज दिस सेक्शन क्लॉज 2 specifically indicates? Let's understand. The first thing it speaks that the husband, in the case of the marriage solemnized before the commencement of this act, that the husband has married again before the commencement, that any wife or husband married before such commencement was alive at the time of solemnization. जैसे कि पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी ये बात समझा था कि अगर शादी के टाइम पे आपका दूसरा कोई पति या पत्नी जिंदा है, that can be the first and strong ground for the issue of the divorce. ये तो हमने पढ़ ही चुके थे. लाइक अगर मेरा कोई दूसरा पति या पत्नी जिंदा है तो मैं तो दूसरा शादी कर ही नहीं सकती. This becomes a void marriage itself. We know that, right? So when we are talking about the void marriage itself, and we know this can be the ground of a void marriage, है ना? So talking about the wife, when the wife can file for the divorce petition, अगर wife को ये पता चलता है कि उसका शादी से पहले उसका पति का दूसरा कोई अफेयर्स था, उसका ऑलरेडी शादी हो रखी थी, then the wife can sue or the wife can ask for the decree of the divorce. ये हुआ आपका पहला चीज, है ना. आगे थोड़ा बात करते हैं. क्या बोलता है ये? बोलता है कि that the husband has since the solemnization of the marriage been guilty of the rape, sodomy or bestiality. Okay. Just one second. So ये बोलता है कि अगर पति शादी के बाद आफ्टर द मैरिज द हस्बैंड इज accused of rape, sodomy or bestiality. Actually, I forgot the meaning of the sodomy. Just let me check it once. Okay, got it. So this is the act of the sexual activity between a man and animal, that is the sodomy. And bestiality means the sexual intercourse with a animal, that is called the bestiality. Okay. So if the husband is guilty of sodomy, bestiality or rape, okay, so these three things if the husband is guilty of, then the wife can ask for the decree of divorce. वाइफ ये बोल सकता है कि नहीं, मेरे को अपने पति के साथ रहना नहीं है. अगर मेरा पति और किसी औरत के साथ जाके जबरदस्ती करता है, अगर मेरा पति रेप चार्ज में बंद है, then I have all my right to leave that person because he is a criminal. जो बंदा एक एनिमल के साथ अगर मतलब आजकल के जमाना तो इतना हो गया ही, क्या ही बोले, आप लोगों को तो पता ही होगा. यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज दैट पीपल आर रेपिंग द एनिमल्स. मतलब नीचे गिरने का ना एक हद भी होता है. तो लोग क्या करते हैं ना, आजकल पीपल आर जस्ट इवन इफ दे आर नॉट हेजिटेटिंग टू रेप द एनिमल्स, they are doing the sexual intercourse with the animals. That is called the sodomy or bestiality. Okay. So anyone, if anyone can do this kind of the lowest and lowest activity, उसको हम क्या ही बोले. तो in this case, do you think एक वाइफ को अपने पति के साथ रहना चाहिए? भले ही वो आपका पति हो, मैटर नहीं करता. अगर उसी ने किसी का रेप किए हो, अगर उसी ने किसी के साथ जबरदस्ती किया हो या किसी एनिमल के साथ जबरदस्ती किया हो, सोडोमी या बिस्टलिटी में उसी को गिल्ट प्रूफ किया गया हो, देन दैट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द डिवोर्स ऑन बिहाफ ऑफ द वाइफ. है ना? क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट अंडर द क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 it speaks about that Hindu Adoption and Maintenance Act
सेक्शन 18 और इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो ये दोनों कंडीशन पे ना आपका आता है मेंटेनेंस का बात। सो मेंटेनेंस का चीज पे आपको ये बोला जाता है कि इफ देयर इज द सूट फॉर द मेंटेनेंस, अगर आपके सामने मेंटेनेंस का सूट है ना, एंड देयर इज द देयर इज नो कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया, पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, दे आर लिविंग सेपरेटली, then the wife can ask the husband for the maintenance and the husband is liable to give the maintenance to the wife, है ना। यहाँ पे पत्नी जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, बिकॉज according to the Hindu culture, according to the Hindu tradition, because according to the Hindu culture, according to the Hindu tradition, when a wife gets married now, the wife is the responsibility of the husband. So पति को जो है अपना पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, पत्नी का प्रॉपर केयर लेना चाहिए, राइट। अगर पत्नी अपने पति से किसी भी रीजन से अलग रह रहा है, इवन इफ दे आर लिविंग सेपरेटली, दैट इज नॉट द ओनली ग्राउंड जहां पे पति अपने पति को छोड़ देगा। द वाइफ इज लायबल टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। अगर 1 साल से ज्यादा हो गया और उन दोनों साथ में नहीं रह रहे, देन पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दैट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द क्लेमिंग ऑफ द मेंटेनेंस। ये एक पॉइंट आपका गया। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट हर मैरिज was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years. This is the most important point over here. We have already understood when we are discussing the voidable marriage. याद कीजिएगा, मैं जब आप लोगों को सेक्शन 12 समझा रही थी, सेक्शन 12 पे मैंने आपको समझाया था अबाउट द voidable marriage ना, मैंने डिटेल बताई थी व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द voidable marriage। मैंने वहां पे आप लोगों को एक पॉइंट बोली थी, याद कीजिएगा, when the wife has not attained the age of the majority, अगर पत्नी का जो है एज 18 साल नहीं हुआ है, if the wife has not attained at the age of the majority, that is 18 years, then in that case what happens? In that case the marriage is called as the voidable marriage because it is the discretion of the parties to decide whether the marriage should continue or not, है ना। ये यहाँ पे ना, ये जो चाइल्ड मैरिज जो है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज इज इलीगल इन इंडिया, बट इसी को इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट में इसी को वॉइडेबल के कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू डिसाइड whether the marriage is void or valid, इसीलिए बोला गया है, क्योंकि रीजन ये है कि स्टिल इन हिंदू लॉ, इन आवर कल्चर, इन आवर हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर, a lot of tribal areas ना, they also are the part of us। आपका देख लीजिए, आप उड़ीसा पे देखिए, महाराष्ट्र पे देखिए, पंजाब पे देखिए, तमिलनाडु पे देखिए, आंध्रा पे देखिए, किसी भी साइड पे आप जाइए, there are a lot of tribal communities who follow their own traditions, है ना, उन cultures, एंड उनके कल्चर पे ना चाइल्ड मैरिज इज अलाउड, उनके कल्चर पे 10-11 साल में शादी करवा दिया जाता है, एंड दैट इज देयर ट्रेडिशन। ओके, उन लोगों का मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट सो मच डेवलप, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, उनको ऐसा नहीं होता है कि हम डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जंगल पे जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, जलाते हैं, खाना खाते हैं, शिकार करते हैं, वो अपना लाइफ जीते हैं। तो अगर उनको हम जाके बोले कि आप 18 साल से पहले बच्ची का शादी ना करवाइए, तो क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। सो उनको जो होता है ना, वो भी हमारे हिंदू लॉ के अंदर भी आते हैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज। सो इसीलिए ना हिंदू मैरिज एक्ट पे ये जो शादी होता है ना 18 साल पहले, इसी को डिस्क्रिप्शन ऑन द पार्टीज रखा दिया गया है, एक्सेप्ट द चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात अलग है, बट यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट पे इसी को वॉइडेबल माना गया है कि अगर पार्टी चाहे तो उस मैरिज को रिपुडिएट कर सकती है या कर सकता है।
अगर मैं एक लड़की हूँ, मेरा उम्र 15 साल है, ये जो लास्ट प्रोविजन है ना आपका क्लॉज 2 का सब क्लॉज 4 जो होता है, ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरा साल 15 साल है, मान लीजिएगा आई एम 15 years ऑफ द ओल्ड, एंड मेरा शादी करवा दी गई। मान लो मेरा फैमिली जबरदस्ती मेरा शादी करवा दिया, तो वहां पे मेरा क्या हुआ, मेरे को जब मैंने शादी करके गई, मेरे को रियलाइज हुआ कि नो, आई डोंट वांट टू स्टे विथ माय पार्टनर, आई शुड एंड दिस मैरिज। सो मैंने क्या किया, मैंने जाके कोर्ट पे बोला, या मैंने डिक्लेयर किया कि मैं ये शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। देन यस, द मैरिज विल बी डिक्लेयर्ड एज void, क्योंकि एनी ऑफ द पार्टीज ऑफ द मैरिज इफ दे आर नॉट एग्रीइंग टू स्टे विद द पार्टनर, ये चाइल्ड मैरिज था, ये कोई वैलिड मैरिज नहीं था कि अगर मैं उसी को रेपुडिएट कर दूं, मना कर दूं कि मैं रहना नहीं चाहती, मैं शादी करना नहीं चाहती, या फिर मैं ये शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो इसी को जबरदस्ती वैलिड माना जाएगा। इवन इफ आई एम ए मेजर ना, अगर शादी मेरा विश के अगेंस्ट है, फ्रॉडुलेंट हुआ ना, देन इट इज ऑल्सो voidable इन नेचर। सो यहाँ पे अगर मेरा उम्र से पहले शादी हुई है, एंड मैं मेजोरिटी अटेंड करने से पहले इस शादी को रेपुडिएट कर रही हूँ, देन दैट मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज ए void मैरिज। बट अगर मैं अपना मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद उस चीज को रेपुडिएट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो आई हैव अटेंडेड द एज ऑफ द मेजोरिटी, दैट इज 18 years। आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ द मेजोरिटी आई एम रेपुडिएटिंग द मैरिज। 18 साल होने के बाद मैं बोल रही हूँ कि मैं ये शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। 18 साल होने के बाद मेरे को इस चीज का समझ है कि 18 साल होने के बाद मेरा शादी को वैलिड माना जाएगा। अगर जानबूझ के 18 साल के बाद भी मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम एक्सेप्टिंग द मैरिज। एंड तभी अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे को मेरा पार्टनर के साथ रहना नहीं है, देन मेरे को डिवोर्स देना पड़ेगा। नॉट ओनली द ग्राउंड दैट कि मैरिज voidable इन द नेचर है, मैं उस मतलब मैरिज से छुटकारा पा जाऊंगी, मेरे को तलाक नहीं देना पड़ेगा, डिवोर्स का प्रोसीडिंग नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं होगा, है ना। अगर मेरा शादी उम्र से पहले हुआ है, तो सिंपल सी बात है, 18 साल होने से पहले इन केस ऑफ ए गर्ल, एंड 21 साल होने से पहले इन केस ऑफ द बॉय, बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मैरिज, they should repudiate, no sorry, not in the case of the boys, in case of the boys also it is 18 years, because in case of the majority लिखा गया है, मेजोरिटी अटेंड करने का जो एज है वो 18 साल है, हम सबको पता है। सो अगर 18 साल होने से पहले हम शादी को रेपुडिएट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देन दैट voidable मैरिज विल बी कन्वर्टेड टू द void मैरिज इटसेल्फ। उस void मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? गॉट इट? देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 13A, it speaks about the alternative relief of the divorce proceeding. So when we're talking about the alternative relief of the divorce proceeding, it speaks that the petition or the dissolution of the marriage. So what are the alternative relief? In short, we can say the alternative relief is the judicial separation. तो कोर्ट यूजुअली क्या करता है कि अगर देखता है कि यार पार्टीज जो है उनका नाम मिलने जुलने का चांसेस है, मतलब इफ दे ट्राई दे माइट स्टे टुगेदर, बट उन दोनों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसके वजह से वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। सो इन दिस केस दिस इज द नॉट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो बोले कि नहीं आप दोनों अलग हो जाओ। वो क्या करेगा ना, एक जुडिशियल सेपरेशन इशू करेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही समझा चुकी हूँ। अंडर सेक्शन 6, 7, 8 ने हम लोगों ने बात कर चुके हैं अबाउट द जुडिशियल सेपरेशन। तो वहां पे क्या होता है ना, कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप एक दूसरे से अलग रहो कुछ दिन। अगर अलग रहने के बाद भी आपको लगता है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे, देन आई विल ग्रांट यू द डिवोर्स। उससे पहले मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगा। यू हैव टू स्टे टुगेदर, यू हैव टू ट्राई इट एटलीस्ट, कि एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि किसी भी कोर्ट, किसी भी लॉ नहीं चाहता है कि कोई रिश्ता टूट जाए। कोर्ट हो गया, रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, लॉ हो गया, सब कोई चाहता है कि शादी बनी रहे, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिश्ता कंटिन्यू करें। दैट इज वाई these provisions, laws, rules, regulations are there, right? So
The alternative relief for the divorce proceedings is simple, that is the judicial separation, which is granted by the court when the court sees that there is the divorce and the misunderstanding between the parties and court gives time to each of the parties. दोनों पार्टी को कोर्ट ना सफिशिएंट टाइम देता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जानने के लिए, सो दैट दे कैन stay together with each other or they can try to make a cooperation with each other. ये गया आपका second thing. And the next point 13b, it speaks about the divorce by the mutual consent, है ना? So when we're talking about the divorce by the mutual consent, it means divorce by the mutual consent of the both of the parties. Both of the parties mean it might be the husband or it might be the wife. So when the both of the parties are decided to divorce each other, or if the divorce has been decided mutually by both of the parties, then this is called the divorce by the mutual consent. So what are the criteria of the divorce by the mutual consent that we are going to discuss in the next class? This is all for today. Wrapping up the class over here, guys. If there is any queries, you can mail or you can just ask me by the text anywhere, or you can just connect to the judicial law classes for your further queries. I'll be clarifying your doubt. Or if you are having any, if you need any kind of the clarification or any specific portions of the law, any specific sections, then you can just request through the text or through the comment box to the judicial law classes, so that I can try my best to clarify your doubts. I can try my best to make you understand the concept in a very easier manner. Okay. So wrapping up the class over here, guys. Take care. Bye bye. Take care.